So good morning everyone, welcome back again to my channel Informatica Hub, and I hope you guys are doing absolutely fine. So today with a new IT topic, not an IT topic, it's related to a college topic. So I thought as JEE mains result are out and class 12th result are out, many of you might have decided that yes, you are ready to take in any of the private universities. So yes, if you are from Jharkhand, Bihar, West Bengal and or you might be thinking यार कि कोई नियरबाई स्टेट में एक अच्छे कॉलेज आपको मिल जाए, डिसेंट सा कॉलेज जहां आप एडमिशन ले सको और हाँ वहां से एक अच्छी प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटीज आपको मिले, मीन्स यू कैन गेट अ बेटर प्लेटफॉर्म. सो आई थॉट लेट्स टॉक इन दिस वीडियो रिगार्डिंग उड़ीसा इंजीनियरिंग कॉलेजेस. उड़ीसा इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में मैं बात करूंगा, प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में मैं बात करूंगा जनरली और कंपेयर करूंगा. सो ये फर्स्ट पार्ट है वीडियो की. आई थिंक इसकी डिटेल वीडियो भी मैं बनाऊंगा. तो पहले तो आप लोग तैयार हो, पहले जानो कि व्हाट इज means what is the placement scenarios in private university. So this video is all about genuine experience that I am going to share with you all with all the colleges of Bhubaneswar, Odisha, that is renowned where people generally take admission. So first of all I would like to tell about Bhubaneswar engineering colleges. So basically first of all let's talk about KIIT, ITER, Silicon Institute of Technology, CV Raman College of Engineering, Gandhi Group of College and more. There are lots of more colleges, but yes, these are having a big name. So big name in Odisha in terms of private universities and colleges. So let's talk on this, and also I will be giving you more ideas on what are the other colleges that you can take, like Trident, Birla and all. There are lots of other colleges where also you can take the admission. So first of all मैं बात करूंगा IT और KIIT के बारे में. IT और KIIT is a kind of a deemed university, means that their curriculum is decided as per what they design, because they are having a lots of students inside one campus and lots of students are studying over there. So yes, the curriculum is designed as per them. The design is as per the examination is as per their schedule. It's not relied on any of the external sources. So ITER and KIIT is a deemed university also. CV Raman has one campus, that is KV Raman University, that is also deemed. After that there are other colleges like Gandhi Groups, Silicon Institute of Technologies, Trident is also deemed. Okay, deemed. और NIST, गांधी की 2-3 कॉलेजेस है. और ये सारे जितने भी कॉलेजेस हैं ये सब मतलब काइंड ऑफ एन BPUT से टाइप्ड कॉलेजेस हैं. BPUT इज अ काइंड ऑफ बिजू पटनायक यूनिवर्सिटी, वहां से टाइप्ड है. मतलब इनकी जो एग्जामिनेशंस, इनकी जो मिड्स मतलब जितने भी करिकुलम, इनकी जो मार्कशीट वो डिसाइड होती है BPUT के तरफ से. सो ये डिफरेंस है यहाँ पे. KIT में जो भी करिकुलम है खुद की डिजाइन है, वहीं की डिग्री मिलेगी, KIT यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलेगी. एंड इट इज लिटिल बिट फ्लेक्सिबल व्हेन वी आर कंपेयरिंग विद एनी एक्सटर्नल कॉलेजेस, बिकॉज एग्जामिनेशन सपोज if you missed it also, there is a kind of compart examination that is going in KIT, ITR kind of stuff. But in Biju Patnaik and all, it is a kind of a central examination, so that is decided actually by the government or the board, then only the examination happened. So थोड़ा सा समझ में आया होगा what is deemed university, what are typed university or linked with BPUT university. So deemed university में KIT, ITR और CV Raman University, CV Raman College of Engineering is also there, CV Raman University is also there. So ये सब deemed university है. So अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कहाँ पे मैं एडमिशन लूँ, कहाँ पे एडमिशन लूँ यार, कहाँ पे जाना सही रहेगा, which college is good to go and which college is really not too good to go. So first of all I will tell you should judge on the parameter about your financial condition, how it is. You are the better judge, means you are the better judge that whether you are ready to invest that thing or not, whether the ROI is important for you or not, whether you want more exposure, whether you want to मतलब कि explore and work in a better campus, or you want the things that yes, I can manage the thing, I just want to learn and do engineering, and yes, I want to work on my skills and want to grow, so that you can grow from anywhere. In fact, you are going for an NIST where the fees is too low in comparing to all these colleges. That's also if you want to work on yourself, like programmatical skills, IT skills, or in the particular software skills, and try to run for
the job by your own also, or in campus also you will get lots of opportunity. It will be totally depending upon how you groom yourself, how you learn yourself, and how you make the impact that you can. So you can go anywhere. And yes, budget is really crunch for you. It's really matter each and every part of money that you are spending. It's matter for you. I would suggest you should go for in budget friendly college. NIST is a good college. सीवी रमन इज ऑल्सो गुड कॉलेज, बट सीवी रमन में भी 10 लाख के अराउंड आ ही जाता है, सिलिकॉन में भी 10 लाख के अराउंड आ ही जाता है, मान के चलो। हॉस्टल, फूडिंग, इंस्टीट्यूशनल फीस अराउंड लेके 7, 8, 9, 10 एकदम इतना पहुंच ही जाता है। सीवी रमन हो गया, सिलिकॉन हो गया। एनआईएसटी में थोड़ा कम जाता है, मतलब 7 तक आप लोग सब हॉस्टल लेके निपट जाओगे। उसके बाद गांधी की तो बहुत सारे कॉलेजेस है, गुन्नूपुर में है, भुवनेश्वर में है, बहुत सारे गांधी ग्रुप के कॉलेजेस है। वहां पे भी फीस काफी कम जाता है। व्हेन वी आर कंपेयरिंग विद दिस ऑल दिस कॉलेजेस, काफी कम, मतलब आईटीआर से काफी कम, 7-6 लाख में एकदम कंप्लीट हो जाता है आपका बीटेक एंड ऑल वहां पे। तो सिनेरियो आपको समझ में आ गया होगा। अब इंपॉर्टेंट ये रखता है कि यार मैं बहुत कंफ्यूज हूं, मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा कौन से कॉलेजेस में जाऊं मैं, या मैं केआईटी ले लूं जहां 20 लाख रुपए मांग रहे हैं, या फिर मैं आईटीआर ले लूं कि 15 लाख रुपए मांग रहे हैं, या फिर मैं सिलिकॉन लूं जहां 10 लाख रुपए मांग रहे हैं। मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। एट लास्ट मेरे को प्लेसमेंट चाहिए, मेरे को कोई एक्सपोजर से मतलब नहीं है एंड ऑल। बहुत एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट, एवरी इंडिविजुअल इज लिविंग इन अ डिफरेंट सिनेरियो, एवरीवन हैज देयर ओन प्रायोरिटीज, everyone has their own means surroundings what they want to do. So first of all, अगर केआईटी जाना है, केआईटी के लिए मैं उन्हीं लोगों को सजेस्ट करूंगा जो फिनेंस को ज्यादा, मतलब फिनेंस उसके लिए कोई ज्यादा, मतलब कि बहुत ज्यादा लोड का चीज नहीं है। मतलब अगर फिनेंस, यू आर फाइनेंशियली स्ट्रांग, आई वुड सजेस्ट रिकमेंड यू यार गो देयर, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट अ बेटर एक्सपोजर, बेटर एक्सपोजर। एंड इनफैक्ट हर जगह की प्रोज एंड कॉन्स होती है, बट हाँ अगर फिनेंसेस की प्रॉब्लम नहीं है ना, तो 90% यू आर इन द पॉजिटिव साइड। कुछ पार्ट हो सकता है यार आप गलत कल्चर में फंस जाओ तो आप अपने आप को बिगाड़ लो एंड ऑल, बट ऑल द थिंग 90% पार्ट यू विल बी इन द बेस्ट पार्ट, you will be in a better place to get lots of exposure in all the fields and domain, or in all your interest area that you are having, being it the tech or non-tech. In fact, a better exposure, a better classroom environment, of better things, a better teaching, better flexible curriculum, and lots of things that you will be getting in KIIT. In fact, a better company exposure. अब ऐसा नहीं है कि दूसरे ग्रुप्स में कंपनीज की एक्सपोजर नहीं है, ये सब नहीं है, बट हाँ KIIT इज लिटिल बिट अप इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल। सेकंड में मैं अगर नाम लूंगा तो आईटीआर की लूंगा, आईटीआर, दैट्स ऑल्सो टू गुड, बट हाँ थोड़ा सा बजट वहां कम है। सो अगर आप मिड बजट पे हो, मिड बजट आपकी मतलब आप जो एक्सपेंड कर सकते हो, दैट्स नॉट टू बी 20 लाख, इफ यू वांट इट टू बी 15 लाख अराउंड एंड ऑल, सो आई वुड सजेस्ट यू आईटीआर चले जाओ। आईटीआर में भी एक बहुत ही अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, बट हाँ नॉट एज कंपेयर टू केआईटी, बट हाँ एक्सपोजर फेस्ट सब कुछ वहां होगा, बस थोड़े से अगर केआईटी अगर 100 है तो आईटीआर 90 है इन एक्सपोजर से नॉल। प्लेसमेंट यार दोनों की वो आप पे डिपेंड करेगी, दोनों में कंपनी आएगी एंड यू विल बी गेटिंग द मोर दैट यू कैन गेट एज पर योर स्किल्स एंड एज पर योर लक, दोनों चीज को कंबाइन करके, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। एटलीस्ट मैं तो ये बोलूंगा यार प्लेसमेंट तो कहीं से भी आपको लग जाएगा अगर आप स्किल सेट डेवलप कर चुके हो। फर्स्ट राउंड में नहीं लगेगा यार, आप ऑफ कैंपस अप्लाई करोगे, आप बहुत सारे तरीके से अप्लाई करोगे, दूसरे वे से अगर आप स्किल सेट रख लिए तो या फिर सिलिकॉन में रहो, सीवी रमन में रहो, गांधी में रहो, केआईटी में रहो, या फिर कहीं भी रहो आपको मिल जाएगा। ये है कि इन कैंपस ना मिले, थोड़ा स्ट्रगल के बाद मिले, पर ऑफ कैंपस में मिल जाएगा। तो टोटली डिपेंड कि आप अपने आप को कैसे ग्रूम कर रहे हो, कैसे स्किल अप कर रहे हो, कैसे डिजाइन कर रहे हो कि आपको बेटर मिल पाए, ठीक है। तो उसके लिए नहीं सोचना यार कि मैं चला गया गांधी और मेरा दोस्त चला गया केआईटी तो उसको ज्यादा कंपनी की एक्सपोजर मिलेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। थोड़ा सा एक्सपोजर, थोड़ा सा लाइफस्टाइल उसकी अच्छी होगी, थोड़े से कैंपस अच्छे होंगे, थोड़े से एक्सपोजर ज्यादा मिलेगा, थोड़ा सा हो सके अपने आप को पर्सनालिटी वाइज ज्यादा डेवलप कर ले। बट यस इफ यू ऑल्सो वांट ना, अगर डेडिकेशन है तो आप कोई भी कॉलेज में कर सकते हो, बिकॉज यू आर लिविंग अराउंड विथ अराउंड 2000-4000 स्टूडेंट, इज टोटली डिपेंड अपॉन यू कि आप अपने आप को स्किल अप कैसे करो, अपने आप को ग्रूम कैसे करो, अपने आप को एक नेक्स्ट लेवल पे कैसे ले जाओ। सो आई वुड सजेस्ट ये जितने भी कॉलेजेस का मैं नाम ले रहा हूं ना, सब में ठीक है, एक टाइप का है। केआईटी आईटीआर में थोड़ा सा ज्यादा एक्सपोजर है, डीम्ड यूनिवर्सिटी थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है, कैंपस में क्लासेस वासेस अच्छे हैं, थोड़ा ज्यादा कंपनीज की एक्सपोजर मिल जाएगी आपको। केआईटी में बहुत सारे टाई अप है जहां पे इन हाउस 4th ईयर में आपको इंटर्नशिप मिल जाएगी, पेड इंटर्नशिप 2-3 कंपनी के साथ जो भी टाई अप है उसके वजह से। सो दैट्स गुड द थिंग। And yes, if finances is really not finance is not better for you, I would say education is just an experience. You can get the better experience that is you can get from KIIT University. And yes, आप एश्योरिटी तो नहीं है, आप KIIT जा रहे हो तो आप
गारंटी होगी सीवी रमन और सिलिकॉन और आईटीआर के बच्चे से अच्छा करोगे, बट यस यू विल डेफिनेटली गेट अ बेटर एक्सपोजर, दैट्स इज माई गारंटी, अ बेटर क्लासरूम, अ बेटर थिंग, एंड यस इनफैक्ट यू कैन गेट अ बेटर प्लेसमेंट, क्योंकि बहुत अपॉर्चुनिटी आएगी, टोटली डिपेंडिंग अपॉन यू कि आप कैसे उसको ग्रैब करो, ठीक है। और ग्रैब अपॉर्चुनिटीज को कहीं से भी कर सकते हो, दैट्स माई ओपन चैलेंज, कहीं से भी कर सकते हो, बट हाँ केआईटी में थोड़ा सा आपको प्लस मिलेगा, जो मैं बोलना चाहूंगा एक्सपोजर के एंड पे बहुत सारे कैंपस लाइव जी पाओगे, 7-8 स्विमिंग पूल्स, कल्चरल फेस्ट, टेक्निकल फेस्ट, लॉट्स एंड लॉट्स, काफी इंजॉय कर पाओगे सारे एज अ यूनिवर्सिटी, वहां पे सारे ब्रांचेस अक्रॉस ब्रांचेस, बीबीए, एमबीए, लॉ, सारे तरह के बच्चों के साथ इंटरेक्ट करोगे, बहुत कुछ सीखोगे, एंड यस इट विल बी अ बेटर ऑप्शन। आईटीआर भी एक्सपोजर के लिए बहुत अच्छा है, बट आई विल रैंक इट 2, बट यस प्लेसमेंट वाइज सब ओके है। It will be totally depending on how you do the things and how you make out the things. That's it. You might have got lots of idea regarding this. If you want any detailed explanation regarding fees, regarding placement, regarding anything, झारखंड बिहार वाले को बोल रहे कुछ भी डाउट है उड़ीसा कॉलेज के रिलेटेड, यार कमेंट में बताओ, कमेंट में धुआं उड़ा दो, मैं कमेंट में बताऊंगा। इनफैक्ट एक डेडिकेटेड वीडियो हर एक टॉपिक पे बनाऊंगा, और यस यू मेक आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूंगा कि एग्जैक्टली आपको क्या करना चाहिए। सो इस वीडियो में मैं कॉलेज टॉक्स किया हूं, आई होप आपको बहुत कुछ पता चला होगा इस वीडियो से। तब भी अगर आपको लगता है कि वीडियो काफी बकवास है तो कमेंट में जरूर बताना कि आपको पसंद नहीं आया वीडियो में, और वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक करना, कमेंट में बताना कि और क्या चाहिए इस पार्ट में, क्या डिटेल अब मिसिंग है यहाँ पे, या फिर इंस्टाग्राम पे पिंक करो, आई विल बी गाइडिंग यू सो दैट यू कैन गेट द बेस्ट दैट यू कैन। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, कॉलेज एग्जामिनेशन और कोई भी बोर्ड एग्जामिनेशन कुछ भी बची है तो तब तक के लिए टेक केयर, विल मीट यू सून विद अ न्यू इन्फॉर्मेटिव कंटेंट। ऐसे ही रिलेटेड कंटेंट कॉलेज प्लेसमेंट्स एंड ऑल के लिए या फिर स्विचिंग एक्सपीरियंस पूरे आपको काम आएंगे। तब तक अगर आपको जानना है तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और कॉलेज में आपको ये चैनल काफी काम आने वाला है एज पर इंफॉर्मेशन जो आपको मिलेगा, दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू आउट एंड ईज आउट योर कंफ्यूजन। तो चलो मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।